Hello everyone, welcome to IPS Guides. On this particular video, we will see a triangular based sitting arrangement asked in IBPS PO mains, which is of memory based. Alright, so see friends, this is of two variables sitting arrangement. Alright, and this is memory based, not exactly same question asked, but this is memory based. Okay, समझो एग्जैक्टली तो वो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा जितना आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिली उसी के बेसिस पे जितना अच्छा हम लोग क्वेश्चन फ्रेम कर सके हैं किए हैं। तो देखते हैं पहली पजल हमारे पास क्या आती है। ठीक है, सो हियर इज योर पजल व्हिच वाज आस्क्ड इन आईपीएस पीओ मेंस मेमोरी बेस्ड। एग्जैक्टली ये नहीं कहूंगा कि यही आ गई थी, बट थोड़ा सा जितना भी मेमोरी बेस्ड है वो है ये। अच्छा, अब इसको लोग कैसे बना रहे हैं पता है, दो दो केस लेके चल रहे हैं, बट मैं कहता हूं कि इस पजल में एक ऐसा पॉइंट है जहां हमने एक ही पॉइंट से शुरू करेंगे और एक ही केस में मुझे सॉल्व कर देनी है और ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लेंगे हम इसको। ठीक है ना, खैर हम तो हमको समझाएंगे तो मुझे टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है उस पॉइंट से। तो रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 6 persons A B C D E F are sitting at triangular table such that 3 of them at a corner of the table and 3 are sitting at the middle of each side. Okay, the person who are sitting at the corner are facing outside and the person who sitting at the middle of the sides are facing center of the table. Now this is your triangular table. Now corner is this one facing, corner one is facing the middle of the side are facing center of the table. So this corner one is facing outside. Okay, so this corner is facing outside, middle, inside, corner, outside, middle, inside, middle, inside, and this is your corner facing outside. ठीक है, जल्दी से बना लेना ये डायग्राम, आपको अपनी कॉपी पे बना दिया। ठीक है, अब पढ़ो। They like different pet animal, fish, dog, parrot, pigeon, rabbit, fox. E likes a parrot and sits in second to the right of the one who likes fox. See, I don't know the direction of E. E may be at the center or E may be at outside the facing the center. Don't know. E likes parrot but and sits second to the right of the one who likes fox. D. Now I will search for those things which connect E, fox, parrot, which connect these things. With the help of these variable E, parrot or fox, can I place some other persons or not? Are you getting my point? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो E है वेरिएबल, पैरेट एक वेरिएबल है, फॉक्स है, इनमें से कनेक्टेड कुछ हम पॉइंट ढूंढेंगे जिनकी हेल्प से हम किसी और पर्सन्स को बैठा सके या उस पर्सन्स को बैठा सके जो ऐसा कोई एनिमल लाइक कर रहा है। समझना, मेरे कहने का मतलब है कि मैं कनेक्टिंग पॉइंट्स ढूंढ रहा हूं, कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा हूं पूरे पजल में। फिर कहते हैं कि डी डज नॉट फेसेस अपोजिट टू द सेंटर। तो ये तो डेफिनेट लाइन मिल गई हमको, तो हम यहां से स्टार्ट भी तो नहीं कर सकते। इसने मुझे कह दिया कि डी डज नॉट फेसेस अपोजिट टू द सेंटर, मींस डी विल फेसेस इनसाइड, डेफिनेटली face opposite to the center. D does not face opposite, and opposite to the center means outside, means D does not facing outside, D will face inside. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? D फेस करेगा इनसाइड की ओर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पर यहां से हम स्टार्ट भी तो नहीं कर सकते कि अब D से कोई और पॉइंट हमको मिल ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है, बस इतना दिख रहा है कि B and D are not immediate neighbor। तो भी कोई सफिशिएंट इंफॉर्मेशन थोड़ी ना आएगी हमारे लिए। ठीक है ना, ओनली C sits immediate left of the one who like dog। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन, जिसने स्किप कर दी वो 2 केस बनाएगा और जिसने नहीं स्किप की, सीरियसली कह रहा हूं, वो क्या कितने केस में बनाएगा? 1 केस में बनाएगा। अब देखो, ओनली सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक डॉग। आई विल प्लेस डॉग एट दिस पोजिशन इमीडिएटली and immediate left only C is sitting, so C will be sitting at this position, no one sitting at this C. Toward the left means in clockwise direction only C is sitting na. Are you getting my point or not? Only C is sitting. Now if someone says that sir dog may be at this position also,
try to place at this position. If you place dog at this position, now I will show you why I am saying like this. Just wait a second. कि dog अगर यहां होता तो देखो क्या होती बात, ये है इसी तरीके से कुछ बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसी बना है। अगर डॉग यहां होता, ठीक, और ये फेसिंग आउटसाइड है, तो डॉग यहां है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में, सॉरी नॉट इमीडिएट लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड में सी तो ये होता ही होता। फॉर उसके बाद देखा जाए ना तो ये देखो ये भी आ रहा है इसके लेफ्ट में, बात को समझ रहे हो, इसके लेफ्ट में ये भी आ रहा है और ये वाला भी पर्सन आया, मतलब इस बेस में देखा जाए, सिर्फ इस बेस की बात की जाए तो इस बेस में ये पर्सन भी आ रहा है और ये पर्सन भी आ रहा है, पर लाइन तो ये कह रही ना ओनली C6 इमीडिएट लेफ्ट। देखो डाउट नहीं होना चाहिए यार, कंफ्यूज मत होना, ओनली C6 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हू लाइक। अब इस वाले केस में देखो ये रही बेस लाइन, मैंने मानी ये वाली बेस लाइन, ठीक है ना। अब इसके लेफ्ट में तो केवल C ही आ रहा है ना, भले ये आ रहा हो इसके बाद ये आ रहा हो, ऑफ कोर्स आएगा, ये तो ट्रायंगल बन रहा है, पर ये लाइन ही चेंज हो जा रही है, ये इस वाली लाइन में आ रहा है। समझ रहे हो ना मेरे पॉइंट को, कहने का मतलब बस यही तो एक पॉइंट था कि जो समझना था, और एक ही केस में विद इन 3 मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। देखो बहुत अच्छे से समझाया यार, समझना इस चीज को, मेरे पॉइंट को कहने का मतलब है। फिर अब हम सर्च करेंगे उस पॉइंट्स को जो सी से कनेक्ट हो या डी से कनेक्ट हो। तो मैंने देखा अच्छा ठीक है, यहाँ पे डॉग वर्ड मुझे मिल गया, तो कह रहा है कि 2 people sits between the one who like dog and the one who like rabbit. So dog is here 1 2 1 2, definitely rabbit will come at this position, तो mark rabbit at this position ना। अब हम क्या करेंगे, डॉग रैबिट और सी से सर्च करेंगे, कुछ मिल जाए हमको, चलो देखते हैं। The one who like pigeon sits second to the right of D. It means D and pigeon के बीच में बन गया था। F does not like dog. Okay, 2 people sits done. 2 people sits between A and the one who like fish. The one who like rabbit sits. Now देखो rabbit मिल गया ना, और rabbit में the one who like rabbit sits second to the right of the one who like fish. अब देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, rabbit sits second to the right means rabbit is here, suppose one gap fish is here, means between rabbit and fish only one person is living, clear na। rabbit is here, one gap fish is here, rabbit is here, one gap fish is here। Now just imagine, if you imagine that if fish is here, now he saying second to the right, second to the right means 1 2, here we have to place rabbit, but rabbit is here, see this person is facing outside, that is why this will move toward in clockwise direction, rabbit is here which is not possible। समझ में आ रहा है ना, ये facing outside है ना, इस वजह से rabbit को यहाँ आना चाहिए अगर हम fish को यहाँ रखें, बट यहाँ नहीं पॉसिबल है, काटो। fish कहाँ पॉसिबल है, fish यहाँ पॉसिबल है। अच्छा अब fish यहाँ अगर पॉसिबल है second to the right और facing outside direction में, तो 1 2 rabbit is here। अभी समझ में आया ना ये बात। अभी कहते हैं E like parrot and sits second to the right of the one who like fox। So E one gap fox is here, but he is saying E like parrot sits second to the right of the one who like fox। So fox के ऐसे बैठा है second right में। Okay, अभी तो ये देखो, इसको मैं रख कर देता हूँ, अभी तो सब लोग कंफ्यूज हैं कि ये तो लेफ्ट दिख रहा है और सर बना रहे हैं ऐसे, तो रुक जाओ, मैं लिखता हूँ fox एक गैप और E। अब सही है, सेकेंड राइट समझने के लिए तो देखो सर्च करो, और तो फिश आपको ये मिल गया, बोलता कि 2 people sits between the A and the one who like fish। fish is here 1 2, A is here 1 2 A, definitely A will come at this position, mark A at this position, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो कि ये 3 पोजीशन एनिमल से फिक्स हो चुकी हैं, फिश डॉग और रैबिट से फिक्स हो चुकी हैं। तो ये कहते हैं कि देखो ये वाली लाइन कि फॉक्स के सेकेंड राइट में ई है, तो अब सोचो फॉक्स यहां रखने को, सेकेंड राइट विल बी ई, और ई लाइक पैरेट नॉट पॉसिबल, कट गया वाली जगह। फॉक्स ये है, समझो फॉक्स ये है सेकेंड राइट, देखो फेसिंग इनसाइड है ना, तो 1 2 ई इज हेयर और ई पैरेट, तो जगह तो खाली है। चलो यहां पे हम एक केस मान सकते हैं, स्टार बना लो, ठीक है ना। फॉक्स अब यहां नहीं लिख सकते ना, ऑलरेडी रैबिट है, चलो फॉक्स यहां बनाते हैं। फॉक्स यहां हुआ, फेसिंग इनसाइड है, सेकंड राइट कहां आएगा 1 2, ई इधर आना चाहिए, और ई लाइक पैरेट जो कि पॉसिबल नहीं है,
तो सिर्फ एक ही केस बचता है फॉक्स के लिए, दैट दिस वन, फॉक्स विल कम एट दिस पोजीशन। क्लियर है कि नहीं? इसको थोड़ा रब कर दो ना तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। यहां फॉक्स रखा, सेकेंड राइट 1 2 ई यहां रखा, फिक्स्ड, अब पैरेट यहां लिख दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब कुछ बचा है पूरी सिटिंग अरेंजमेंट में। ई यहां लिखा तुमने, जैसे ही ई तुमने लिखा तुमको पता है कि डी इनसाइड आना है, तो डी एक ही पोजीशन डी बचती है इनसाइड, ये रहा डी के लिए। एक लास्ट एनिमल बचता है, दैट इज पिजन। ऑफ कोर्स दिस वन है द पोजीशन पिजन, और यू कैन से पिजन व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक है, आपका ये आ गया। पिजन के बारे में क्या बोला है, ये वाली लाइन बोली थी बी की। सो क्या बोला था, द वन हु लाइक पिजन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द सेकंड, द वन हु लाइक पिजन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी इज हियर, वन गैप, now pigeon is here, one gap B, one gap B, not possible, only this position is B, and from here if we see 1 2 pigeon is here. Now one person is left, that is A B C D E and F, F is at this position and this is your right element। कितना टाइम लगा होगा करने में, देखो मैं तो इतना समझा रहा हूं आपको, तो सिर्फ पॉइंट देखने हैं। पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ा करो, रीड किया करो तो ध्यान से किया करो, ठीक है ना। तो ये था सेटिंग अरेंजमेंट। तो इसी के बेसिस पे 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है, सेम डायग्राम पे। चलो, सो हियर आर 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू द वन हु लाइक रैबिट। सो रैबिट इज हियर एंड डी इज हियर, सो इट्स फ्रॉम हियर 1 2 3 थर्ड टू द राइट, and see if in outwise na facing outside, and 1 2 3 third to the left, so third to the right, option number A। are you getting my point or not? This person is facing outside person, so in clockwise direction 1 2 3 third to the right, option number A will be the correct answer। which of the following pair facing toward the center, means E is facing EAD, 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 option number E will be the correct answer। who sits second to the right of the one who like fox? This person is liking fox and facing inside, second to the right 1 to E, the one who like parrot, the one who like, and the one none of the given of as a option, the one who like, yeah, option number E will be my correct answer। See, who sits second to the right of the one who like fox? Fox is here, second right, facing inside, means in anti-clockwise direction. One person, second person, E or parrot, none of the given, so none of those given as an option। So these are the 3 sets of question, my dear friends। If you like this setting arrangement, please like, share and also comment whether you like this session or not, ठीक है। और क्वालिटी मॉक के लिए जरूर आप हमारे IELTSguide.com को विजिट करें, वहां पे हम लोग डेली बेसिस पे ऑफर्स निकालते हैं टेस्ट सीरीज के, ठीक है। टिल दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।